Hello students, the topic we have to study in this lecture is application of Gauss theorem, and one of the application is electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. So to calculate the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire, first of all we have to assume a straight wire of infinite length of uniform linear charge density lambda. For this wire we have to find out electric field intensity at point P at a distance r from it. Means suppose this is the infinite length uniformly charged wire. Okay, one of its end is going at plus infinite and other end is going at minus infinite, and due to this wire we have to find out the electric field intensity at point P, which is located at a distance r from the wire. The direct length or perpendicular length is r, from where we have to find out the electric field intensity due to this straight wire. So first of all we will find out the direction of the electric field due to this infinitely long straight wire at this point. To calculate the direction we are assuming that there is a small line element and there is also a small line element at the same distance, okay, from this point. Okay, so due to this wire, this line element, this is the positive line element. So due to positive line element at point P, the direction of electric field will be radially outward, means इस point से away. So इस direction में आ जाएगा DE, and due to this line element, and this is also positive, so due to positive line element the direction of electric field will be in this direction. Okay, now we will divide into components to electric field element DE and this DE. So suppose with respect to this line which is joining to observation point P, the angle is theta, this one, and this one also theta. So ये जो एंगल होगा, क्या कौन सा एंगल जो DE का इस लाइन के साथ बन रहा है, that will be also theta. So with respect to angle theta the components will be DE cos theta. So DE cos theta इसका component हो जाएगा और DE cos theta इसका component हो जाएगा, and perpendicular component will be DE sin theta. Okay, so DE sin theta it's same and in opposite direction, so we'll cancel out, but DE cos theta and DE cos theta both are in same direction, so add up. It means the total electric field will be in this direction. So finally we can say that the direction of electric field due to the linear charge is always perpendicular to its length as shown in figure. Means ये जो length है इस length से always क्या होगा, perpendicular होगा, means away from to this and towards to this होगा, but होगा हमेशा ही radially outward यानी perpendicular. Now to find magnitude of electric field due to this linear charge, we have assumed a cylindrical Gaussian surface of length L and radius R. So how we will assume a Gaussian surface? See, this is the infinitely long straight wire जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. तो ये आपका क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका क्या है, प्लस इनफाइनाइट है. सो नाउ वी विल ड्रॉ ए गाउशियन सरफेस. अब गाउशियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो भी ये चार्ज है वो उस गाउशियन सरफेस में आ जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज द गाउशियन सरफेस. कौन से शेप का होगा, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ गाउशियन सरफेस. ओके, Gaussian surface is a closed surface around a charge distribution such that the electric field
intensity has a single fixed value at every point on the surface. Yes, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका पॉइंट है, ये देखिए, ये यहां से यहां तक r इसकी जो रेडियस है, तो इस सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस r ही होगी, तो उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, जैसा कि यहाँ दिया है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ए सिंगल फिक्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस. तो यहाँ इसकी रेडियस क्या है, r है, एंड लेंथ इसके क्या है, l है. ओके, so now we will calculate the electric field intensity at a distance r from this wire. तो r कहाँ हो जाएगा, इसके सरकमफ्रेंस के, इसके सरकमफ्रेंस पे, यानी इसके सरफेस पे. ओके, so to calculate the electric field we will assume some points or elements. So first point we will assume here a point. तो जब आप यहाँ पे एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे, किस पे, इस गाउशियन सरफेस पे, तो इस गाउशियन सरफेस पे जो एरिया एलिमेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर. तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो एरिया एलिमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन से. एंड अभी प्रीवियसली हमने देखा कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम टू दिस. तो यहाँ के लिए क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी ई वेक्टर. सो ds वेक्टर एंड ई वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर for point A. Similarly for point B जो डायरेक्शन ऑफ सरफेस एलिमेंट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स टू माइनस इनफाइनाइट. ओके, ये देखिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन डाउनवर्ड, दिस वन. नाउ एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड e वेक्टर इज 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट we will assume a surface element at point C. Now at that point the direction of surface element will be upward direction, and as well as electric field also be in upward direction. So the direction between E vector and ds vector is 0 degree. Now according to Gauss law, phi equals to close integral of E vector dot ds vector equals to q upon epsilon naught. This is the mathematical expression of the Gauss law, where q is total charge enclosed by the system or Gaussian surface. तो यहाँ पे क्लोज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो हमने कितने पॉइंट्स लिए हैं, a b एंड c पॉइंट लिए हैं. सो तीनों के लिए देख लेते हैं. क्लोज इंटीग्रल और सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू एट पॉइंट a, एट पॉइंट b एंड एट पॉइंट c. तो एट पॉइंट a देखिए, E वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के साथ जो कोस थीटा बनने वाला है वो क्या कर देगा, इनको 0. एट पॉइंट b ऑल्सो ds वेक्टर एंड E वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर, सो दैट टर्म ऑल्सो बी 0. एंड हियर E वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो कोस थीटा बिकम्स 1. ये देखिए यहाँ पे 90 के लिए आ जाएगा, ये भी 90, एंड दिस विल बी 0 डिग्री. सो फाइनली वी विल गेट E इंटीग्रल ऑफ ds. E बाहर क्यों आ गया, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ गाउशियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. सेम ही हमने नोट्स में लिया है. ये आपका सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस है, यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं. By the definition of electric flux, phi equals to close integral of E dot ds. तो इस सरफेस के लिए S1 के लिए आपका क्या था 90, S2 के लिए 90, S3 के लिए क्या था 0 डिग्री. So phi equals to E इंटीग्रल ऑफ ds एट पॉइंट C. तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट है वो एक सेम डायरेक्शन में है. इट मीन्स एंगल थीटा 0 हो जाएगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, बिकॉज इस लाइन जो चार्ज है आपका, इससे ये जो सरफेस है ऑलवेज r डिस्टेंस पे होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. So E ds, now the surface area of cylinder ds will be 2 pi r L.
सो यहां से क्या आ गया, E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर दिस वन एंड L दिस वन. Okay, so the total flux enclosed by this Gaussian surface is E into 2 pi RL, that is equals to Q upon epsilon naught according to Gauss law. Then we will get Q upon epsilon naught equals to lambda L upon epsilon naught. So what is lambda? Lambda is linear charge density, means per unit length का चार्ज अगर लैम्डा है, मीन्स यूनिट लेंथ का चार्ज अगर लैम्डा है तो L लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, बिकॉज L कहां से आ रहा है आपका, L आ रहा है आपका सिलेंड्रिकल जो आपने गाउसियन सरफेस लिया है उसका लेंथ. सो उस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का चार्ज मल्टीप्लाई बाय उसकी टोटल लेंथ. सो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या हो जाएगा आपका लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू 2 पाई आर एल इधर आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 2 लैम्डा अपॉन R. सो E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर भी कह सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 2 के लैम्डा अपॉन आर, आर केप. आर केप मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड कैसे, कि जिस डायरेक्शन में आपका आर है उसी डायरेक्शन में आपका आर केप होगा. और यस, वी ऑलरेडी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. सो नोट्स में देख लेते हैं. 5 इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर इंटू एल, एंड टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Q इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, E वेक्टर इक्वल्स टू 2 के लैम्डा अपॉन R प्लस माइनस R केप. यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया है, देखो एक बार हम प्लस की बात करते हैं तो प्लस R केप का मतलब है पॉजिटिव क्वांटिटी. तो पॉजिटिव साइन लिया है, जो आपने एलिमेंट लिया है मीन्स इनफाइनाइट लॉन्ग जो चार्ज लिया है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मीन्स अवे फ्रॉम टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर होगा. ओके, सो पॉजिटिव साइन फॉर पॉजिटिवली चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम टू इट. एंड नेगेटिव के लिए क्या होता है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स टू दिस. सिमिलरली अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी है बट नेगेटिवली चार्ज है, देन इसके लिए भी जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी बट टूवर्ड्स टू इट होगी. नेगेटिव साइन फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स टू इट. It is clear that the electric field due to linear charge does not depend on length. Means आपका गाउसियन सरफेस का लेंथ कितना है इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आई है. इसका मतलब चाहे इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या छोटा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑलवेज ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर विच शुड बी चार्ज. सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 के लैम्डा अपॉन आर प्लस माइनस आर के. प्लस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज or minus is for negatively charged. So again the direction of electric field intensity is radially outward from the positive line charge, and for negative line charge it will be radially inward. The electric field intensity is independent of size of Gaussian surface. It depends only on distance of point of consideration. The Gaussian surface should contain the point of consideration. Means yes, we have in this application we are going to find out the electric field at the point R. ओके, देखिए यहाँ पे इस R पॉइंट पे हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था. इसलिए हमने इस तरह से ये गाउसियन सरफेस लिया ताकि ये जो R पॉइंट है, इस R डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है वो इस गाउसियन सरफेस पे आ सके. मीन्स वी हैव टू टेक ए गाउसियन सरफेस सच दैट
The point where we have to find out the electric field intensity should contain on that particular Gaussian surface. And direction जो है radially outward means in this direction और radially inward means in this direction. तो पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम टू दिस एंड परपेंडिकुलर, तो यस ये जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर ही है इस चार्ज के लिए. ये जो लाइन चार्ज है इसके लिए क्या डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है एंड रेडियली आउटवर्ड है. और नेगेटिव के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड रेडियली इनवर्ड इन दिस डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.